Shato. Assalamu alaikum everyone. Tonight we have with ourselves O Levels Economics P1. Over November 25, we have 45 minutes for this paper. And yeah, let's get to it. Okay, so Assalamu alaikum everyone. Today we have with ourselves October-November 25 ka P1. We have 45 minutes for this paper. Let's get to it. After every 3 questions, I will return back to the chat for any questions you guys have, so let me know. Question number 1. A government wants to build a new hospital. What is likely to prevent the government from doing this? A. People in the country cannot afford healthcare. ये गलत है. क्यों गलत है? This is wrong because if this would be an incentive to make the hospital. This is incentivizing to make the hospital. क्योंकि इसका मतलब ये है कि लोग अगर अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे प्राइवेट हेल्थ केयर तो पब्लिक हेल्थ केयर बनाओगे ताकि लोग आपके लिए आ सकें and they can avail that healthcare opportunity. People in the country would go abroad for healthcare. This is wrong again because again this would be incentivizing you to make a hospital. C. The government cannot agree how big the hospital is. This is wrong. मतलब realistically सोचो, you can always expand after making the hospital as well. You can always expand. बाद छोटा बना लो फिर बाद में बड़ा कर लो, and this is not something that would halt the process of this. D. The government does not have enough money. Yes. Very straightforward. अगर आपके पास पैसा ही नहीं है बनाने का तो आप किधर से बनाओगे? Question 2. Which term describes the loss of potential benefit to a consumer when making the choice between alternatives? This is the definition of opportunity cost. So this is A. Scarcity नहीं होती. Scarcity is क्या कहते हैं? Diminishing availability. Diminishing availability. एक resource का कम होना. अगर रिसोर्स मतलब तो गलत. शॉर्टेज भी गलत. दिस इज अगेन मतलब रिसोर्स का बहुत कम होना और डिमांड ज़्यादा होना. इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी नहीं है. दिस इज अनलिमिटेड वांट्स एंड limited resources. Always know your definitions. The country is producing at point X on its production possibility curve, which shows that it can allocate its production between capital and consumer goods. A period of recession then causes some of its factories to close. What is the country's new position? तो पहले country इधर है. So let's look at this. Factories जो होती हैं वो आपकी एक factor of production capital में आती है. This is capital. So close means capital. अगर factories बंद हो रही हैं तो capital आपका decrease कर रहा है. Factor of production decrease करेगा तो PPC shifts inward. तो आपका आंसर सी होगा. बी नहीं हो सकता. बी अगर होता तो आपके फैक्टर प्रोडक्शन इंक्रीज होते तब बी होता. और ए और डी भी नहीं हो सकते क्योंकि वो अलोंग द सेम पीपीसी हैं और हमें शिफ्ट देखना था. क्वेश्चन नंबर 4. Which combination gives the correct examples of microeconomics and macroeconomics? मैक्रो अगर देखें ए कहता है स्टडी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और माइक्रो कह रहा है स्टडी ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. रॉन्ग. ये नहीं होता. स्टडी ऑफ बिहेवियर फर्म, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर. रॉन्ग. ये तो दोनों वैसे आप माइक्रो कह सकते हैं. स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल एंड स्टडी ऑफ स्पेसिफिक मार्केट्स. करेक्ट. स्टडी ऑफ इंटरनेशनल, स्टडी ऑफ नेशनल. ये भी गलत. तो दिस इज मैक्रो एंड माइक्रो की डेफिनेशंस. Question number 5. The diagram shows the supply and demand curves for a good. The initial market equilibrium is given at point E1. Yeah. There is change in the market that leads to a new market equilibrium at E2. What is the cause of the change in the market equilibrium? अच्छा, अगर आप ये देखें तो यहाँ पे
एक एक्सटेंशन हुई है along the demand curve, extension along the supply curve, extension. This means shift in demand curve. तो आपका एक डिमांड कर्व यहाँ बनेगा ऐसे T2. We want a rightward shift. Let's see. A decrease in the price of a substitute good, नहीं, अगर substitute good की price decrease करेगी तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, leftward shift होता. Decrease in the price of raw materials, नहीं, ये तो supply factor है, this would supply shift करता. Increase in the price of a substitute good, yes. अगर आपकी पेप्सी है और एक कोक है, कोक की प्राइस इंक्रीज होगी है तो पेप्सी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि लोग कोक से हट के पेप्सी पे आ जाएंगे. D, an increase in raw material prices. This is wrong as well क्योंकि ये supply shift करता leftward. Supply shifts. The diagram shows the demand curve for a good. What can be concluded about a single downward sloping demand curve? Single downward sloping demand curve का मतलब होता है कि जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, ये इसका सिंपल मीनिंग है. तो लेट्स सी, कंज्यूमर्स इंक्रीज डिमांड व्हेन देयर इनकम्स राइज, नहीं, इसका मतलब होता है कि आपका डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा जब इनकम्स राइज करती हैं. कंज्यूमर्स प्लान टू बाय लेस व्हेन प्राइसेस राइज, यस, ये सही है. दिस फिट्स आवर डिस्क्रिप्शन कि प्राइस इंक्रीज करेगी तो डिमांड कम होगी, वी विल बाय लेस और वी विल प्लान टू बाय लेस. Firms produce less as price rises. No, ये तो producer side है, producer related. ये तो supply matter है, supply. Let's see. When the price of butter increased by 10%, quantity supplied increased by 20%. What is the price elasticity of supply of butter? अच्छा, PES का formula होता है change in quantity supplied over change in price. Change in quantity supplied is 20 over 10 is equal to 2 और ये positive होता है. This is always positive क्योंकि प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस बढ़ेगी सप्लाई भी बढ़ेगी. तो ये गलत है, ये भी गलत है, इसका डी आंसर होगा. How are economic decisions determined in a market economic system? Market economic system का मतलब है कि आपकी सिर्फ डिमांड और सप्लाई मार्केट फोर्सेस के हिसाब से सारे इकोनॉमिक डिसीजंस डिटरमिन्ड हो रहे हैं. By a mixture of market forces and government intervention, गलत, जहाँ पे गवर्नमेंट देख लिया काट दें इस क्वेश्चन में. गवर्नमेंट और सेंट्रल प्लानर्स अगेन काट दें. सेंट्रल प्लान सिस्टम तो टोटली ऑपोजिट होता है मार्केट का. बाय गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म, ये भी गलत. ये दोनों मिक्स्ड मार्केट सिस्टम है, मिक्स्ड मार्केट सिस्टम. और ये सेंट्रली प्लान्ड है, सेंट्रल. तो ये सही है. बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यही एग्जैक्टली डेफिनेशन है मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम की. अभी तक किसी के और क्वेश्चंस? I'm assuming अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है. आप लोगों के जैसे जैसे क्वेश्चंस आए जस्ट सेंड देम इन द चैट. जब भी मैं वापस आया करूंगा तो मैं उनको आंसर कर दिया करूंगा. एंड यू गाइस आर एनकरेज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. किसी भी कॉन्सेप्ट में हल्का सा भी कोई भी मसला आ रहा हो ना तो डू आस्क, मैं उसी वक्त एक्सप्लेन कर दिया करूंगा. इंसिडेंस ऑफ टैक्स समझा दें. इंसिडेंस ऑफ टैक्स मैं समझा देता हूँ, वो मैं एंड पे समझा देता हूँ क्योंकि अभी पेपर करके फिर वो समझा दूंगा मैं. अभी के लिए इफ कि कोई क्वेश्चन रिलेटेड आता है तो वो प्लीज पूछ लीजिए. लेकिन ये अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट भी समझना है तो वो भी करवा दें. अविहान 1 to 8 क्वेश्चंस ना, मैं रिकॉर्डिंग अभी हो रही है क्लास की, वो अपलोड कर दूंगा आज ही कर दूंगा, तो वहां से देख लेना. अच्छा, क्वेश्चन 9. A bridge is built over a river which enables journey times to be reduced. The table shows costs and benefits of building the bridge. अच्छा, प्राइवेट बेनिफिट आपका 12,000 है, प्राइवेट कॉस्ट आपकी
10,000 है, एक्सटर्नल बेनिफिट 8,000, एक्सटर्नल कॉस्ट 5,000 है। विच कैलकुलेशन रिप्रेजेंट्स सोशल बेनिफिट? सोशल बेनिफिट आपका क्या होता है? सोशल बेनिफिट होता है प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट, प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट, which is equal to 12 plus 8 is equal to 20,000, 20K। तो बस हमने 20K ढूंढना है, गलत गलत गलत, 20K आंसर है, 8 plus 12। सोशल बेनिफिट का अगर आपको फॉर्मूला आता है तो दिस क्वेश्चन हलवा है आपके लिए। What is not a role of the central bank? To act as a lender of the last resort. This is their role. They do this for commercial banks. Commercial banks. To hold deposits from the general public, ये आपका करेक्ट आंसर है, दिस रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स। आप खुद ही सोचें, आप में से कोई कितने बार गया होगा अपनी अम्मी अब्बू के साथ, किसी सेंट्रल बैंक चला गया होगा अपनी कंट्री के, और वहां से पैसे डिपॉजिट किए होंगे, उन्होंने रखे होंगे या निकाले होंगे। उनका काम ही नहीं होता ये। दिस इज अ रोल ऑफ कमर्शियल बैंक, सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। टू इशू नोट्स एंड कॉइन्स, ये सेंट्रल बैंक का रोल है। टू मैनेज गोल्ड रिजर्व्स, ये भी सेंट्रल बैंक का रोल है। The table shows the proportion of disposable income spent on 3 different goods by 4 different households. Which household is likely to have the lowest income? आप लोगों ने एक बात हमेशा याद रखनी है, lower income households always spend more on basic necessities. Spend most of their income on basic necessities. Most of their income on basic necessities. बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, फूड होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, हाउसिंग होगी, इस तरह की चीजें जो जिनके बगैर बंदा रह ही नहीं सकता। और हायर इनकम स्पेंड ऑन लग्जरीज, जैसे आपके होटल्स हो गए, आपके वेकेशंस हो गई वगैरह। तो अगर आप देखें यहाँ पे फूड 50%, ट्रांसपोर्ट 15%, हॉलीडेज 5%, ए ही आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो मेजोरिटी इनकम आप अपनी लगा रहा है नेसेसिटीज पे, और लग्जरी पे बेचारा 5% लगा रहा है, तो कुछ लगा ही नहीं रहा। तो यहाँ पे सबसे पुअर यही है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बेसिक नेसेसिटीज पे लगा रहा है। आपने बस कंपेरेटिव एनालिसिस करना है, सर यहाँ पे सबसे ज्यादा नेसेसिटीज पे कौन लगा रहा है, वो ये है। यहाँ पे भी देखो नीली यही है। और क्या कहते हैं, अगर आप हॉलीडेज में देखो तो वो सबसे कम स्पेंड कर रहा है। इन लोगों को अगर देख लो तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है, किधर गया ये रहा। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है जब आपके बैंक्स के पास पैसे खत्म हो जाते हैं ना, कमर्शियल बैंक्स के पास, वो डिफॉल्ट करना शुरू हो जाते हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हम अपने कस्टमर्स को पैसे कहाँ से दें, हमने तो कस्टमर्स के डिपॉजिट्स होल्ड किए हुए थे। क्योंकि कमर्शियल बैंक्स मोस्टली काम ऐसे करते हैं कि वो आपके डिपॉजिट होल्ड करते हैं, उस पे वो आगे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उसको आगे एज लोन देते हैं और फिर वापस लेते हैं, और उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ पैसा उन्होंने रखा होता है, ताकि अगर कोई आके उनसे पैसा मांगे तो वो उसे दे दें। लेकिन इन दी इवेंट कि उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स खराब हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, उनके पास पैसा ही नहीं बचा, लेकिन लोगों ने अपने पैसे तो उनके पास रखवाए हुए थे, उन्होंने लोगों के सारे पैसे उड़ा दिए। तब आपका सेंट्रल बैंक आता है, उन्हें बेल आउट करता है, जिसे कहते हैं बेलिंग आउट। उन्हें बेल आउट करते हैं, उन्हें पैसे देता है कि अपने कस्टमर्स को उनके पैसे वापस करो। तो वो आपका होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। आपका फिर सेंट्रल बैंक आके उन्हें लेंड करता है पैसे, कि ये लो अपने कस्टमर्स को वापस दो पैसे। क्लियर है अली? ट्रेड डेफिसिट एंड सरप्लस क्या होता है, वो भी चलो एंड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एंड पे भी के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक है टैक्स इंसिडेंस और ट्रेड डेफिसिट एंड सरप्लस, वो मैं एंड पे एक्सप्लेन कर दूंगा। इन विच ऑक्यूपेशंस डू वेजेस टेंड टू बी द लोएस्ट? अच्छा जी, जहाँ पे आपकी सप्लाई ग्रेटर होगी तो वहां पे वेज कम होगी, जनरल रूल ऑफ थंब। इन दोज वेयर वर्क इज डेंजरस, नो, इनमें सप्लाई कम होगी, क्योंकि हर बंदा इन जॉब्स में जाना नहीं चाहेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं बिजली के खंभों पे चढ़ूं या मैं कोई बहुत हाई राइज काम करूं, क्योंकि मुझे उसमें लगेगा कि जॉब डेंजरस है, तो लोग कम काम करेंगे, उसमें सप्लाई कम होगी तो वेज ज्यादा होगी, तो वेज यहाँ पे लो नहीं होगी।
In those where there is an excess supply of labor, yes, supply of labor increase करेगी तो wage decrease करेगी. In those where workers belong to trade unions, no, trade unions जो हैं fight for good wages, fight for better wages. तो उनकी wages बहुत low नहीं होंगी. In those where workers need long training, नहीं, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग उनकी इतनी देते हो तो उनकी पे भी आप उसी हिसाब से देते हो क्योंकि उनके स्किल्स इंप्रूव हो रहे होते हैं, आपने उनके इतना स्पेंड किया होता है. तो स्किल्ड लेबर एंड सप्लाई भी कम होती है क्योंकि इतनी इंटेंसिव ट्रेनिंग चाहिए होती है ड्यू टू ट्रेनिंग required. How might a trade union increase its bargaining power? बार्गेनिंग पावर होती है कि वो कितने अच्छा नेगोशिएट कर सकते हैं उनके साथ. बाय एक्सपैंडिंग द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, नहीं, ये तो आप फर्म के लिए अच्छा काम कर रहे हो. यू विल डू नथिंग फॉर द फर्म, डू नथिंग फॉर फर्म. बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ यूनियन मेंबरशिप, ये भी गलत है. तो जब भी आप ट्रेड यूनियन ज्वाइन करते हो तो उसकी एक कॉस्ट होती है मेंबरशिप की, लेकिन अगर आप वो इंक्रीज कर देते हो तो आपके पास वर्कर ही कम आएगा. जब आपके पास वर्कर कम आएगा तो आप वर्कर की सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर सकते फर्म्स के लिए, तो आपकी नेगोशिएटिंग पावर डिक्रीज कर जाएगी. तो दिस इज रॉन्ग बिकॉज आपके पास सप्लाई ऑफ वर्कर्स कम हो जाएगी. सप्लाई ऑफ वर्कर्स इन यूनियन डिक्रीजेस. By restricting the entry of workers to the industry, ये correct है क्योंकि you're controlling supply here. Controlling supply. By supporting wage claims in other industries, ये इनका काम होता है ट्रेड यूनियन का कि आप वेज क्लेम्स को सपोर्ट करो, बाकियों के लिए वेज बेहतर करो, लेकिन इससे आपकी अपनी बार्गेनिंग पावर पे कोई इफेक्ट नहीं आता. ये लॉजिकली सेंस ही नहीं बनाती बात. Question number 14. To be able to produce a car tire, rubber is required. If a car tire manufacturer merges with a supplier of rubber, which type of merger is this? Let's see. Supplier of rubber हुआ है तो ये तो होगा vertical. Vertical होगा क्योंकि vertical होता है same industry, different scale of production. Yeah, sorry, different level of production. तो conglomerate नहीं होता. This is different industries. Different industries merge होना. Horizontal नहीं होता. Horizontal is same industry, same scale. जैसे अगर होंडा जो है वो टोयोटा का टेक ओवर कर लेती है तो वो हॉरिजॉन्टल होगा. इंटरनल मर्जिंग कुछ नहीं होती, इंटरनल ग्रोथ होती है जहाँ पे आप ज्यादा ब्रांचेस खोल लेते हो, इस तरह के काम कर लेते हो, आप इंटरनली ग्रो करते हो, तो वो तो मर्जिंग में आता ही नहीं है, तो टोटली अनरिलेटेड है. तो वर्टिकल इसका आंसर है जहाँ पे आप सेम इंडस्ट्री डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे होते हो. अच्छा, ट्रेड यूनियन सप्लाई ऑफ लेबर कंट्रोल करता है. ट्रेड यूनियन सप्लाई ऑफ लेबर ऐसे कंट्रोल करता है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वो वर्कर्स को कह सकते हैं कि नहीं, हमने इससे ज्यादा वर्कर्स आपको देनी नहीं इंडस्ट्री में, जो हैं उनको फेयरली पे करो, उनसे काम लो, उनको सिखाओ, उनको हम सिखा देंगे, लेकिन उन्हें फेयरली पे करो ताकि आप सप्लाई कंट्रोल रखो. देखो अगर सप्लाई बढ़ जाएगी लेबर की तो ट्रेड यूनियन को काम ही नहीं रहेगा. ट्रेड यूनियन वाले को वो कहेंगे भाई जो ट्रेड यूनियन के वर्कर्स हैं उन्हें साइड पे दफा दूर करो, हम बाकी वर्कर्स को देख लेंगे क्योंकि उनके पास एक्सेस सप्लाई है. तो आप सप्लाई कंट्रोल कर लोगे लेबर की, और ट्रेड यूनियंस ही करती हैं, और ट्रेड यूनियंस आपको बताती हैं कि आपने क्या करना है. तो वो कहती हैं कि नहीं, हमने इससे ज़्यादा वर्कर ही नहीं देना आपको में इस इंडस्ट्री में. वो किसी ना किसी तरह रिस्ट्रिक्ट कर लें अगर एंट्री ऑफ वर्कर्स इनटू द इंडस्ट्री, तो आपकी सप्लाई कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी ही नहीं. दैट एसेंशियली मीन्स कि अब आपका सप्लाई कम हो गई, वेजेस बढ़ जाएंगी और आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी क्योंकि आपके हाथ में सारी लेबर है. तो हाँ, ट्रेड यूनियंस यही करती हैं. Does anyone else have any other questions? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकती. आई एम अज्यूमिंग आप कह रहे हो कि अगर वर्कर्स की सप्लाई कम हो जाएगी तो वेजेस ज़्यादा देनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगी. हाँ, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ज़रूर. कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द आंसर इजंट ही? Zoe, could you please explain what question you're referring to? I'm assuming you're referring to question 13.
करेक्ट। अच्छा, बाय सपोर्टिंग वेज क्लेम्स इन अदर इंडस्ट्रीज, इससे आपकी बार्गेनिंग पावर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि देखो अगर अदर इंडस्ट्रीज में मैं काम कर रहा हूँ पर एक इंडस्ट्री जो उनसे टोटली अनरिलेटेड है उसमें मेरी बार्गेनिंग पावर कहीं से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसके वर्कर्स डिफरेंट हैं उस इंडस्ट्री के वर्कर्स से। वो आप सोचो दुनिया ही दो डिफरेंट है। अगर मैं इस दुनिया में बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ ना, इस दुनिया में मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा उसका, तो आपका जो ट्रेड यूनियन है उसकी बार्गेनिंग पावर बाकी इंडस्ट्रीज में कुछ करने से इंक्रीज नहीं करेगी, उसी इंडस्ट्री के लेबर को कंट्रोल करने से आपकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज करेगी। जी, आप क्या? मार्केट एक्सपैंड करने से फर्म प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो बार्गेनिंग पावर इंक्रीज करेगी। देखिए नहीं, अगर आप फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज कर देते हो ना तो फर्म को उससे कोई मसला नहीं है, फर्म कहेगी करते रहो भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्म का फायदा हो रहा है उसमें। तो उससे फर्म ये नहीं कहेगी कि हम वर्कर्स को बेटर ट्रीट करना शुरू कर देंगे, गारंटी नहीं है बिल्कुल भी। आई अंडरस्टैंड योर रीजनिंग कि हम उनके लिए अच्छा काम करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा काम करेंगे, लेकिन फर्म्स ऐसे काम नहीं करती। फर्म्स बहुत ज़्यादा बस प्रॉफिट इंसेंटिवाइज होती हैं, वो बंदा बंदा नहीं देखती। तो उन्हें आपको ज़रा सा डंडा देना पड़ता है कि भाई सीधे हो जाओ, वरना मैंने तुम्हें वर्कर ही नहीं देना, मैं सारी वर्कर की सप्लाई कंट्रोल करके रख लूंगा, तुम्हें वर्कर ही नहीं मिलेगा। जो हैं उन्हें अच्छी वेजेस दो, उन्हें सही से ट्रीट करो, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस दो, तब मैं जाके आपके साथ सही होऊंगा। उनके लिए अगर आप कोई अच्छा काम कर दोगे तो इट इज़ इन गारंटीड कि वो आपके लिए भी अच्छे होंगे। हाँ श्योर, वी कैन गो विद कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, नो वरीज। अच्छा, moving on. Question 15. When it produces 100 units, the firm's total variable cost is 300 and its total fixed cost is 2700. What is the average total cost? अच्छा, पहले हम देखते हैं ATC is equal to TC over quantity. TC is equal to the total fixed cost plus total variable cost, which is 2700 plus 300 is equal to 3000. अब अब ATC होगा, ATC will be 3000 over 100, क्योंकि क्वांटिटी प्रोड्यूस 100 है, तो ये आ जाएगा 30 और आपका आंसर हो जाएगा डी, एवरेज टोटल कॉस्ट। ये सिंपल फॉर्मूला था। What is likely to be found when there are many small firms in an industry? Many small firms in an industry है, that means there are few barriers to entry. Yes, indeed. ये करेक्ट है, क्योंकि few barriers to entry है तो हर बंदा आए जा रहा है। टीचिंग में ही देख लें, बैरियर्स टू एंट्री इतने ज्यादा नहीं है, बस आपको सब्जेक्ट आना चाहिए और थोड़ा बहुत आपके पास फोन वगैरह पड़ा हो ताकि आप मार्केट कर सको, तो सारे आ जाते हैं। इसलिए देयर इज अ ह्यूज डिमांड, ह्यूज सप्लाई ऑफ टीचर्स इन द इंडस्ट्री, तो फ्यू बैरियर्स टू एंट्री। देयर इज हाई एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नो, ये बैरियर टू एंट्री है, बैरियर टू एंट्री, क्योंकि स्मॉल फर्म्स के पास इतना पैसा किधर से आएगा कि वो R&D करें। स्मॉल फर्म्स don't have funds, have huge funds for R&D. R&D होता है research and development. There is very little competition. No, number of firms बहुत ज़्यादा है। क्या कहते हैं, huge number of firms. Number of firms, जब firms ज़्यादा होंगी तो competition obviously ज़्यादा होगा। Very large capital costs are needed to establish a firm. No, if this was true, तो small firms exist ही ना करती उस industry में। If this was true, there would be no small firms. There would be no small firms or less small firms. वो आपका आंसर ए है। A government imposes tariffs on imported goods. What is not a likely reason for this? Let's see. To boost domestic output, to influence the country's balance of payments, to protect domestic employment, to reduce exports. Actually, let's go one by one. A, गलत. You do.
Tariffs are used for this. Are used for this. क्योंकि अगर इम्पोर्टेड गुड्स लोग बहुत ज्यादा खरीद लें, लोकल खरीद ही नहीं रहे, तो आई वांट के लोकल ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू करें, तो मैं टैरिफ लगा दूंगा इम्पोर्टेड गुड्स को, उन्हें महंगा कर दूंगा, वो महंगे हो जाएंगे, उनकी डिमांड कम हो जाएगी, लोग वो खरीदना कम करेंगे, लोग डोमेस्टिक पे आ जाएंगे, तो डोमेस्टिक अपनी आउटपुट ज्यादा बढ़ा देगा उसको मैच करने के लिए. तो टू इन्फ्लुएंस द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रॉन्ग यूज फॉर दिस, इसीलिए यूज होते हैं. अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट चलता है तो आप टैरिफ्स इंपोज कर दोगे ताकि लोग इंपोर्ट्स कम खरीदें. टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट, ये भी गलत है. अगेन वही डोमेस्टिक आउटपुट वाली बात है कि लोग बाहर का ज्यादा खरीद रहे थे, आपकी डोमेस्टिक सप्लाई प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, तो आप डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट को बचाने के लिए टैरिफ लगा दोगे, लोग इंपोर्टेड गुड्स कम खरीदें, लोकल ज्यादा खरीदें, तो लोकल की डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगी, इवन ज्यादा हो जाएगी. टू रिड्यूस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये टैरिफ्स इसलिए नहीं इस्तेमाल होते कि आप एक्सपोर्ट्स रिड्यूस कर दो. Tariffs are for reducing imports. Tariffs are for reducing imports. A government collects the following revenue in a year: taxes on goods 30, taxes on income 500, taxes on service 20, and customs and duties 50 million. What is the amount of indirect tax revenue? Indirect tax होता है tax, direct tax क्या होता है? Direct tax is income पे tax. Is for example income पे tax, income tax. डायरेक्ट टैक्स होता है आपकी कंजम्पशन, इनडायरेक्ट टैक्स होता है आपकी कंजम्पशन पे, ऑन कंजम्पशन. तो वो आ गया आपका, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया. तो 30 + 20 + 50 इज इक्वल टू 100. आपका आंसर हो गया सी, 100 million. Does anyone have any questions? Go ahead, Vihan, आप अपना क्वेश्चन बता दें. Can you explain 18 again? Sure. 18 में उन्होंने पूछा हुआ है कि टैक्सेस आपकी गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा कलेक्ट किए हैं, 30 million, 500 million, 20 million, 50 million. उन्होंने पूछा इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू कितना है. इनडायरेक्ट टैक्स होता है कंजम्पशन पे टैक्स. मैंने अगर जाके माइलो खरीदा तो माइलो 30 का था, ऊपर टैक्स उस पर 2 रुपए का लग गया, तो इनडायरेक्ट टैक्स था 2 रुपए. डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम पे टैक्स लगना. तो ये जो है ये डायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स है, इसको हम अपनी इक्वेशन से निकाल देंगे. हम रखेंगे टैक्सेस ऑन गुड्स को, टैक्सेस ऑन सर्विसेज को और कस्टम्स एंड एक्साइज ड्यूटीज को, ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं. तो उनका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, इन तीनों को प्लस करके हमारा 100 million आ जाएगा. टैक्सेस ऑन सर्विसेज, हाउ कैन इट बी इनडायरेक्ट टैक्सेस? टैक्सेस ऑन सर्विसेज इनडायरेक्ट टैक्सेस ही होते हैं, क्योंकि इट इज नॉट, मतलब इट इज द पेमेंट दैट इज गेटिंग टैक्स्ड. आई एम अज्यूमिंग आप इस तरह समझ रहे हो कि टैक्स ऑन सर्विस है, किसी ने आपके लिए सर्विस की है, उसको इनकम मिली है, उस पे टैक्स हुआ है. लेकिन टैक्स ऑन सर्विसेज बाकी किस्म के भी होते हैं, काफ़ी और सर्विसेज भी होती हैं, तो इस तरह नहीं चलता कि वो आप उसे इनकम में क्लासिफाई करो. तो टैक्सेस ऑन सर्विसेज भी हमेशा क्या कहते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं, उसे आपने इनकम से अलहदा सोचना है. यस. Which policy measures would be classified as fiscal policy? Fiscal policy होती है tax and government spending पे based. Changes in interest rates and money supply, changes in, ये तो monetary policy है, monetary policy. Changes in labor market policies to encourage more training, no, ये तो supply side है. Changes in tax rate in government, yes, this is supply side policy.
फिस्कल जो होती है वो सिर्फ टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे देखी जाती है। चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट बिल्कुल भी नहीं। What is the most likely result of a fall in interest rates? फॉल इन इंटरेस्ट रेट से फॉल इन इन्फ्लेशन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। फॉल इन इंटरेस्ट रेट होगा तो लोग स्पेंड कम, सेव कम करेंगे, सेविंग्स डिक्रीज, स्पेंडिंग इंक्रीजेस और इन्फ्लेशन इंक्रीजेस। फॉल इन इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा क्योंकि आपके अब लोन्स वगैरह जो होंगे, लोन्स ऑन लोअर इंटरेस्ट रेट्स, लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन ज्यादा अपीलिंग होते हैं तो इन्वेस्टमेंट फॉल नहीं करेगी। लोन्स ऑन लोअर इंटरेस्ट रेट्स, राइज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, यस, ये मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है कि सेविंग कम हो जाएगी तो स्पेंडिंग ज्यादा हो जाएगी। राइज इन सेविंग नहीं, राइज इन सेविंग होती इफ इंटरेस्ट रेट्स increased. What does a successful supply side policy increase in an economy? The level of unemployment बिल्कुल भी नहीं, total opposite. Total opposite. Level of employment increase करती है कि वो employment targeted होती है। Production possibilities, yes. आपका PPC shift मारता है, PPC shift, क्योंकि आपके FOPs की क्वांटिटी या क्वालिटी बेहतर हो रही होती है तो आपका PPC शिफ्ट मारता है। FOP क्वालिटी और क्वांटिटी इंक्रीजेस। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं होती पर रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटली अनरिलेटेड। रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर देखें तो वो शुड डिक्रीज क्योंकि आपकी सप्लाई साइड पॉलिसी मोस्टली आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर देती है तो आपकी इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए। अच्छा रुको, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ। ये रेहान, आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा, से किसी और का कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो। आप लोग अब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। So, question 22. In one particular year, South Sudan's population growth was 1.3%, while its GDP growth was 2%. What is the most likely consequence of this? Population growth 1.3, GDP growth 2%. GDP per capita will decrease? No. Rate of inflation will decrease? Can't conclude from this. और वैसे अगर जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी इन्फ्लेशन होगी, ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन आती है। So that will happen if growth is demand led. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करेगा, यस, क्योंकि आपकी जीडीपी की ग्रोथ ज्यादा थी। जीडीपी ग्रोथ ग्रेटर देन पॉपुलेशन ग्रोथ। अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज नहीं, ग्रोथ हो रही है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं होना चाहिए। What are the correct definitions of unemployment and employment relative to the number of people of working age? People of working age, हैं? So that means they are those who want a job but cannot get one. Yes, तो ये दो तो गलत हो गए। और एम्प्लॉयमेंट में अगर देखें, those who are not in full time और those who have a job at current, ये तो बिल्कुल गलत है। एम्प्लॉयमेंट वही होती है जहाँ पे आपके एक्चुअली जॉब होती है, और अनएम्प्लॉयमेंट दोज हु वांट अ जॉब बट कैन नॉट गेट अ जॉब एंड दे आर ऑफ वर्किंग एज, तो वो बी आंसर हो गया आपका। द ग्राफ शोज चेंजेस इन द एवरेज प्राइस लेवल। व्हेन डिड द कंट्री एक्सपीरियंस डिफ्लेशन? अच्छा, लेट्स सी। डिफ्लेशन होती है फॉल इन प्राइस लेवल, फॉल इन प्राइस, तो ये होता है नेगेटिव
प्राइस चेंज। तो आपने इस ग्राफ पे ढूंढना है कि नेगेटिव प्राइस चेंज में हम कहाँ जा रहे हैं। वो हम जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, हम नेगेटिव में हैं। तो ईयर 4 to 5 हमारा आंसर होगा। ईयर 2 to 5 जो है इन्फ्लेशन भी हो रही है और डिफ्लेशन भी हो रही है, तो ये तो गलत है। ईयर 2 to 3 हम पॉजिटिव में हैं, इन्फ्लेशन हो रही है, लेकिन इन्फ्लेशन की रेट जो है, मतलब प्राइस चेंज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डिफ्लेशन नहीं हो रही, तो ये भी गलत है। ये इसे कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। ईयर 2 to ईयर 4 भी आपकी इन्फ्लेशन आ रही है, उसमें पॉजिटिव में है हम, तो वो भी गलत है। जहां जहां पॉजिटिव है वो गलत है। डिफ्लेशन होगी, आपका प्राइस चेंज परसेंटेज जो है वो नेगेटिव में होगी। सर अगर जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज होता तो ऑप्शन ए होती, सिंस जीडीपी इंक्रीजिंग। इसमें आई मीन हाँ, अगर ये होता तो इंक्रीज हो रही होती। वैसे आई डोंट थिंक नेसेसरीली, डिपेंड्स ऑन आपकी पहले जीडीपी कितनी थी, अब कितनी होगी, लेकिन जनरली आप कह सकते हो। लेकिन इसकी आप, आई वुड से डेफिनेटिव आंसर यही है कि अगर उन्होंने कैलकुलेशन करने को दी होती तभी आप फिगर आउट कर सकते हैं। आई थिंक इसकी मैंने कैलकुलेशंस की थी, कुछ पर सही होती है, कुछ पर गलत होती है कि जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज कर रही होती है। In many high-income economies, question 25, increasing income inequality has led to greater levels of poverty. Which combination of policies would aim to reduce income inequality? हाँ Vihan, please go ahead. सर सीपीआई कैसे निकालते हैं? सीपीआई मैं ना एंड पे बताता हूँ, एक बार ये पेपर हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह। अच्छा, ओके सर। 1.5 एंड 3 में डिसइंफ्लेशन है, यहाँ से ये यस, उसमें डिसइंफ्लेशन है। In many high-income country economies, increasing income inequality has led to greater levels of poverty. Which combination of policies would aim to reduce income inequality? Aim to reduce income inequality, progressive taxation होनी चाहिए आपकी, progressive taxation. Decrease corporation tax, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो रिच को बेनिफिट करेगा। फर्म्स ऑलरेडी जो कम टैक्स दे रही हैं वो और कम टैक्स देंगी, ये तो गलत है। इंक्रीज इनकम टैक्स एंड रिड्यूस द पावर ऑफ ट्रेड यूनियंस, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो वर्कर होगा वो मार खाएगा। तो सो दिस वुड benefits rich, harms workers, जो मोस्टली लोअर इनकम वर्कर्स होते हैं। Increase inheritance tax and increase the national minimum wage. Yes, increase inheritance tax अगर आप करते हैं तो जो रिच लोग हैं, जो इनहेरिट किए जा रहे हैं बहुत ज्यादा चीजें, उनकी जनरेशनल वेल्थ है, उसमें से और लोगों को मिलता जाएगा, तो उनकी वेल्थ कम होती जाएगी और लोगों की बढ़ती जाएगी, तो एक इक्वालिटी क्रिएट होती जाएगी। तो ये फिस्कल पॉलिसी तो करेक्ट है। सप्लाई साइड पॉलिसी, इंक्रीजिंग नेशनल मिनिमम वेज सब वर्कर्स के लिए बेहतर होगी, क्योंकि जो बेचारे अभी मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं, शायद वो मिनिमम वेज सूटेबल ही ना हो आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए, तो वो अगर आप इंक्रीज कर देते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाएगा, उनकी इनकम बढ़ जाएगी, तो आपकी इनकम इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। इंक्रीज सेल्स टैक्स एंड प्राइवेटाइज मोर पब्लिक सेक्टर फर्म्स, गलत। अच्छा, किसी के कोई क्वेश्चन? अच्छा, a country has a falling birth rate and a rising death rate while an increasing number of its working age adults are seeking employment abroad. अच्छा, तो फॉलिंग बर्थ रेट इंपॉर्टेंट है, राइजिंग डेथ रेट हो रही है और लोग बाहर जाने को सोच रहे हैं। How is this likely to affect the numbers in different age groups in the country? फॉलिंग बर्थ रेट है तो आपके अंडर 16 जो है वो तो फॉल करेंगे, क्योंकि लोग पैदा ही जब कम हो रहे हैं तो बच्चे भी कम होंगे, जो आपके अंडर 16 होंगे वही कम होंगे। राइजिंग डेथ रेट अगर हो रही है तो दैट मीन्स ओवर 60 वाले जो हैं वो भी फॉल करेंगे, तो ये हट गई और ये दोनों ऑलरेडी गलत हैं, तो ए आंसर आ गया। और सीकिंग एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड, तो जो वर्किंग एज के हैं वो भी बाहर जाना चाह रहे हैं, तो आपकी वहां से भी आपकी कम होगी नंबर्स, वहां से भी आपकी पॉपुलेशन फॉल करेगी, तो ए आंसर है। अंडर 16 फॉलिंग बर्थ रेट की वजह से, 16 to 60 क्योंकि बाहर जाना चाह रहे हैं तो वहां से भी आपकी पॉपुलेशन कम होगी, और ओवर 60 आप देख लें राइजिंग डेथ रेट है, तो
जो बूढ़े होंगे वो तो गए। What is an advantage of international specialization? Choice is limited. नहीं, स्पेशलाइजेशन होती है efficient use of resources के लिए, efficient use of resources। तो चॉइस लिमिट नहीं होती आपकी, इसमें चॉइस की बात नहीं आती। कंट्रीज बिकम ओवर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये एडवांटेज तो ना हुआ। रिसोर्सेज आर यूज्ड मोर efficiently, yes। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर डिक्रीज, नहीं ये भी इसकी स्पेसिफिकली ये बात नहीं होती। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपकी इससे रिलेटेड नहीं होती। क्या इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंट्री है जिसका एक एडवांटेज है एक स्पेसिफिक गुड प्रोड्यूस करने में, तो वो एक और कंट्री के साथ ज्वाइन करती है अपने हाथ, जिसका किसी और गुड में प्रोड्यूस करने का स्पेशलाइजेशन है। मतलब एक्स कंट्री अगर ब्रेड बहुत एफिशिएंटली बना सकती है लेकिन कपड़े इतनी एफिशिएंटली नहीं बना सकती, वाई कंट्री है वो ब्रेड एफिशिएंटली नहीं बना सकती लेकिन वो कपड़े बहुत एफिशिएंटली बना सकती है, तो फिर वो दोनों अपने ज्वाइन करेंगे हाथ, अपने रिसोर्सेज ज्वाइन करेंगे, और एक्स जो है वो सिर्फ ब्रेड बनाएगी, वाई जो है वो कपड़े ज्यादा बनाएगी। तो एक्स अपने रिसोर्सेज ज्यादा पुट करेगी ब्रेड में, और उसके रिसोर्सेज क्योंकि ब्रेड के लिए एफिशिएंट है वो ज्यादा ब्रेड बनाएगी और वो वाई को भी ट्रेड कर सकेगी। वाई अपने रिसोर्सेज कपड़ों में लगाएगा, और क्योंकि उसके रिसोर्सेज कपड़ों में एफिशिएंट हैं, ब्रेड में अब जाया नहीं हो रहे, तो वो और ज्यादा कपड़े बनाएगा और वो कपड़े एक्स के साथ ट्रेड करेगा ब्रेड के लिए। तो ये आपकी इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन होती है, जहां पे आप काम एक एक करके डेलीगेट कर देते हो अकॉर्डिंग टू हु कैन यूज द मोस्ट एफिशिएंट रिसोर्सेज। डिवीजन ऑफ लेबर भी वैसे स्पेशलाइजेशन नहीं होती है। डिवीजन ऑफ लेबर ये होती है कि अगर मैं जो हूँ, मैं इकोनॉमिक्स से ही पढ़ा सकता हूँ लेकिन मेरा कोई दोस्त है वो फिजिक्स बेहतर पढ़ा सकता है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि मैं आप लोगों को फिजिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ाऊँ और वो आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाए। हम इकोनॉमिक्स के लिए अलग बंदा रखेंगे, फिजिक्स के लिए अलग रखेंगे, केमिस्ट्री के लिए अलग रखेंगे, मैथ्स के लिए अलग रखेंगे। ये डिवीजन ऑफ लेबर हो रही है अकॉर्डिंग टू आवर स्पेशलाइजेशन। तो डिवीजन ऑफ लेबर ऐसे होती है कि आप एक बंदे को एक स्पेसिफिक रिपीटेटिव टास्क दे देते हो और वो उसी में बेहतर होता जाता है। बस एक बंदा मल्टीपल काम नहीं कर रहा होता, ताकि उसकी ना अटेंशन डिवाइड होती है और उसका एक स्पेसिफिक काम में स्किल बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो वो बहुत एफिशिएंट हो जाता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर ये होती है कि जिस काम के लिए आप बेहतर हो आप वो उसे दे दो और वो उसमें और स्पेशलाइज करे और उसमें और बेहतर होता जाए, वो बस वही काम करता रहे, वो वर्कर वही काम करता रहता है। Question number 28. A country raises its tariffs on imported goods. What is the most likely result? A fall in the rate of inflation. Not necessarily, हो सकता है लोग ना खरीदना बंद करें, तो क्या कहते हैं, या हो सकता है आप इंपोर्ट करते हो गुड्स फॉर प्रोडक्शन, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकती है। इंक्रीज इन कंज्यूमर चॉइस, नहीं इंक्रीज तो नहीं होगी कंज्यूमर चॉइस में, क्योंकि अगर टैरिफ्स पड़े हैं तो इम्पोर्टेड गुड्स शायद कम है, इम्पोर्टेड गुड्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्वांटिटी डिक्रीजेस तो आपकी चॉइस कम हो जाएगी। इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यस, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट हैज टू मेक अप फॉर इट। डोमेस्टिक मार्केट फिल्स प्रोडक्शन गैप। जो लोग अब आपके वो नहीं खरीद रहे इंपोर्टेड गुड्स, या इंपोर्टेड गुड्स आ नहीं रहे, तो डोमेस्टिक मार्केट अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देगी ताकि वो उस मार्केट शेयर को कैपिटलाइज कर सके। डी, द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मूव्स इनटू अ डेफिसिट। नो, मूव्स अवे फ्रॉम डेफिसिट, क्योंकि अब आपके इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। Which combination of changes in export revenue and import expenditure is most likely to cause a country's exchange rate to depreciate? Depreciate होती है जब आपकी demand of currency falls, supply of currency increases. Let's see. डिमांड ऑफ करेंसी फॉल करेगी आपकी जब आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो लोग कम खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट खरीदते हो आप उस कंट्री की करेंसी में खरीदते हो, तो जब आपके एक्सपोर्ट्स कम खरीदे जाएंगे तो आपकी करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी, तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू आपका डिक्रीज करेगा। और इम्पोर्ट जो है, जब आप इम्पोर्ट्स खरीदते हो तो आप उस कंट्री को उसके पैसों में देते हो, उसकी करेंसी में देते हो, तो आप अपनी करेंसी देते हो, उनकी करेंसी खरीदते हो, फिर उनको उनकी करेंसी में पेमेंट देते हो, तो आपकी करेंसी मार्केट में चली जाती है और उसकी सप्लाई बढ़ जाती है और उसकी
डिप्रिसिएशन हो जाती है। तो जब आपका इनपुट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तब ये काम होगा, तो ये आंसर बी होगा। जी विहान। सर एक बार इसको थोड़ा इस टॉपिक को थोड़ा इलेबोरेट करके बता दें, जैसे कि मतलब कोई क्वेश्चंस आते हैं जैसे ग्राफ के कि एक प्राइस मतलब प्राइस क्यों बढ़ती है कोई भी करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। इंपोर्ट ज्यादा खरीदते हो, वो कंट्री इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स कम करती है, या वो कंट्री जो है वो उसकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है, तो आप वहां पे अपने पैसे रखते हो सेव करने के लिए। माइक बंद था। एक सेकंड। अब आवाज आ रही है? आ रही है। परफेक्ट। अच्छा, मैं कह रहा था कि आपकी सप्लाई और डिमांड इस तरह कंट्रोल होती है आपकी करेंसी की, कि अगर मेरे एक्सपोर्ट ज़्यादा बिक रहे हैं तो मेरी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोग जब मेरे एक्सपोर्ट खरीदेंगे वो मेरी करेंसी में खरीदेंगे, तो उनको मेरी करेंसी चाहिए होगी उसके लिए, तो मेरी करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी और मेरी करेंसी की सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि वो मार्केट से लोग खरीदे जाएंगे। तब मेरी करेंसी की प्राइस बढ़ जाएगी, जब डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम हुई। जब लोग मेरे एक्सपोर्ट्स कम खरीदेंगे और मैं लोगों के इंपोर्ट ज़्यादा कर दूंगा, मैं इंपोर्टेड गुड्स ज़्यादा खरीदना शुरू करूंगा। इंपोर्टेड गुड्स ऐसे होते हैं कि मैं अपनी करेंसी बेच के अगले की करेंसी लेता हूँ, उतनी लेता हूँ करेंसी, फिर उस करेंसी में उनको पेमेंट्स देता हूँ उस इंपोर्टेड गुड की। तो इसमें बात ये आ गई कि आपका जो है अपनी सप्लाई इंक्रीज कर रहे हो मार्केट में भेज के, और उनकी डिमांड इंक्रीज कर रहे हो उनका प्रोडक्ट उनकी करेंसी खरीद के। जी विहान। सर तो डिमांड का शिफ्ट होगा या सप्लाई का शिफ्ट होगा? डिपेंड करता है कि किस तरह से हो रहा है, दोनों अलग अलग टाइम्स पे हो सकते हैं। अगर लोग आपके एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं तो आपकी डिमांड मूव करेगी। सर शॉर्टेज के एरिया में ज्यादा बाइंग होती है करेंसी की या फिर सेलिंग होती है, और सेम एज सरप्लस? शॉर्टेज अगर आपकी करेंसी की हो रही है तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसमें आपकी करेंसी खरीदी ज़्यादा जा रही है और उसकी सप्लाई कम हो रही है। लेकिन करेंसी के इस तरह आप ये नहीं देखते कि शॉर्टेज हो रही है सप्लाई हो रही है, लेकिन जनरली वैसे करेंसी अगर आप कह रहे हो कि कम है मार्केट में, तो उसका मतलब ये है कि वो खरीदी ज़्यादा जा रही है, उसकी सप्लाई कम है। और सरप्लस में, और जब शॉर्टेज होगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, सरप्लस में उसकी प्राइस कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी। Last question. A government wishes to reduce the deficit on the current account on its balance of payments. So हमने deficit reduce करना है. Which policy should it adopt? Increase subsidies on exports? Yes. क्यों? क्योंकि जब exports पे आप subsidies बढ़ा दोगे, cost of production decreases, price उनकी decrease होगी, तो they would become more competitive. More competitive in the international market. Increase taxes on its imports? बिल्कुल भी नहीं, उसकी प्राइस बढ़ा देगा। Remove an embargo on imports? नहीं, this would increase deficit, क्योंकि अब लोग imports खरीदना शुरू कर देंगे। Increase deficit and import expenditure. Remove tariffs? Again same चीज, increase deficit and import expenditure increase कर देगा। With that we have solved the entire paper. इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी आज रात यूट्यूब पे, मैं अपलोड कर दूंगा। और क्या कहते हैं, अभी के लिए लेट्स स्टार्ट विद द अदर क्वेश्चंस यू गाइस हैव। मुझे बस आप 5 मिनट दें, मैं आके एक